بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں خیبر پختونخوا کو نگراں وزیر اعلیٰ مل گیا۔ گورنر خیبر پختونخوا نے اعظم خان کے نام کی منظوری دے دی ہے۔ گورنر غلام علی نے نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے اعظم خان کے نام کی توثیق کی۔ وزیر اعلیٰ محمود خان اور اپوزیشن لیڈر مذاکرات میں اعظم خان کے نام پر متفق ہوئے تھے۔ اعظم خان کے نام کی سمری منظوری کے لیے گزشتہ رات بھجوائی گئی تھی، جس کے بعد گورنر نے آج اعلامیہ جاری کر دیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ آج گورنر ہاؤس میں اپنے عہدے کا حلف لیں گے، تو یہ اہم خبر ہے جس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کو نگراں وزیر اعلیٰ مل گیا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا نے اعظم خان کے نام کی منظوری دے دی ہے۔ گورنر غلام علی نے نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے اعظم خان کے نام کی توثیق کی ہے۔ وزیر اعلیٰ محمود خان اور اپوزیشن لیڈر مذاکرات میں اعظم خان کے نام پر متفق ہوئے تھے۔ اعظم خان کے نام کی سمری منظوری کے لیے گزشتہ رات بھجوائی گئی تھی، جس کے بعد گورنر نے آج اعلامیہ جاری کر دیا ہے۔ اور یقیناً عوام جاننا چاہتے ہیں کہ اعظم خان بطور نگراں وزیر اعلیٰ اپنی ذمہ داریاں کیسے نبھائیں گے، شفاف الیکشن کے لیے ان کا کیا پلان ہے اور وہ اپنی ٹیم کیسے تیار کریں گے۔ تو ان سوالات کا جواب جاننے کے لیے ہم بات کرتے ہیں اعظم خان صاحب سے۔ اعظم صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اعظم صاحب سب سے پہلے تو یہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور اپوزیشن حکومت نے آپ کے نام پر اتفاق کیا ہے، تو کیا آپ مقررہ مدت کے اندر الیکشن کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اور اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو کیا حکومت اور اپوزیشن نتائج بھی تسلیم کرے گی؟ انشاءاللہ ان کی مہربانی ہے، یہ سب نے کنسنسس کے اوپر نام کیا ہوا ہے، تو میں بے مشکور ہوں اور انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اسی لیے تو ہے نا گورنمنٹ کے الیکشن کمیشن کو فل سپورٹ دے، جو ان کا قانون کا آئین کے مطابق جو رول ہے اسی میں ہم سپورٹ دیتے ہیں نا۔ پہلے بھی میں یہ کر چکا ہوں جب میں انٹیریئر منسٹر تھا گورنمنٹ میں۔ ہمارا تو یہ رول ہے کہ ان کو سپورٹ، ایڈمنسٹریٹو سپورٹ، لا اینڈ آرڈر سپورٹ، یہ سب ان کو کمپلیٹ سپورٹ دینا۔ بیسک فنکشن تو یہی ہے گورنمنٹ کا، اور نیکسٹلی ہم یہ امید کریں گے کہ فیئر اور فری الیکشن ہو جائے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اچھا اعظم صاحب یہ بھی فرمائے گا کہ شفاف الیکشن کرانے کے لیے آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی، اور کیا نگراں سیٹ اپ کے لیے قابل اعتبار لوگوں کی فہرست تیار کر لی آپ نے؟ نہیں ابھی تو نہیں کیا، میں تو رات کو میں 12 بجے اسلام آباد سے آیا ہوں، ابھی پھر مجھے پتہ چلا راستے میں، تو ابھی تو سوچنا پڑے گا، ابھی میں تو ٹائم ہی نہیں ملے مجھے۔ ٹھیک ہے اعظم صاحب، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو کر رہے تھے، اور یہ بڑا ضروری ہے چونکہ کے پی کے ہم نے دیکھا کہ سب کی آنکھیں اس کی طرف تھی۔ ابھی تو پنجاب میں دیکھنا یہ ہے کہ کس کا نام آتا ہے، لیکن چلے کے پی کے کا یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے، اور جو اسٹریٹجی بنائی گئی ہے اللہ کرے کہ اس پر کام کرتے ہوئے آگے آنے والے دنوں میں ہم جب جنرل الیکشن دیکھیں تو کوئی تضاد نظر نہ آئے، ایک ورکنگ ریلیشن شپ اچھا اپوزیشن اور گورنمنٹ میں نظر آئے۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا کے نگراں وزیر اعلیٰ اعظم خان انتظامی امور میں ماہر ہیں، صوبے، ملک اور بین الاقوامی سطح پر اہم عہدوں پر بھی رہے ہیں۔ 2 بار عبوری دور میں وزیر بھی بنے، بااثر سیاسی خاندان کے چشم و چراغ کے بارے میں پشاور سے عبدالرحمان کی رپورٹ میں دیکھیے۔ چارسدہ کے مردم خیز خطے کے سپوت اعظم خان تاریخی اسلامیہ کالج کے گریجویٹ، 1962 میں برطانیہ سے بیرسٹری کی تعلیم مکمل کی تو اسی سال سول سروس کا حصہ بنے۔ سب سے پہلے تعیناتی پشاور میں اسسٹنٹ کمشنر کے طور پر ہوئی۔ خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ اور چیف سیکریٹری کے فرائض بھی انجام دے چکے ہیں۔ کئی اہم عہدوں پر کام کیا اور وفاقی سیکریٹری کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد اقوام متحدہ سے منسلک ہوئے اور کئی اہم منصوبوں کے سربراہ رہے۔ 2007 میں خیبر پختونخوا کی نگران کابینہ میں وزیر خزانہ اور 2018 کی عبوری حکومت میں وفاقی وزیر داخلہ کے طور پر کام کیا۔ نگران وزیر اعلیٰ کے طور پر ان کے لیے صوبے میں امن و امان، معیشت کی بحالی اور پرامن شفاف انتخابات اہم ٹاسک ہوں گے۔ عبدالرحمان، سما، پشاور۔ تو خیبر پختونخوا میں تو اتفاق ہو گیا اور منظوری بھی مل گئی، لیکن پنجاب میں نگراں وزیر اعلیٰ کے نام پر حکومت اور اپوزیشن ہاتھ نہ ملا سکے۔ اب فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا۔ کمیشن کو 4 نام موصول ہو گئے ہیں اور ان کی پروفائل تیار کرنے کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کل نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے نام کا اعلان کرے گا۔ عباس نقوی رپورٹ کر رہے ہیں۔
निगरान वजीर आला के नाम के लिए पंजाब असम्बली में हुकूमती और अपोजिशन पार्लिमानी कमेटी का स्पीकर सिब्तैन खान की सदारत में 2 घंटे इजलास। दोनों कमेटियों की तरफ से तमाम नाम मुस्तरद। अपोजिशन के अहमद नवाज सुखेरा और नवीद अकरम चीमा, जबकि हुकूमत के आहद चीमा और मोहसिन नकवी पर एतराजात कायम रहे। इजलास की अंदरूनी कहानी समा ने हासिल कर ली। अपोजिशन ने अहमद नवाज को सरकारी मुलाजिम करार दे दिया। अहमद नवाज सुखेरा 2 साल तक किसी ओहदे के अहल नहीं। अपोजिशन अरकान ने मौकिफ इख्तियार किया। नवीद चीमा का नाम गवर्नर पंजाब को भिजवाई गई लिस्ट में शामिल नहीं था। हुकूमती कमेटी का कहना था आहद चीमा नैब हिरासत में रहे, उन पर करप्शन के इल्जामात हैं, किस तरह वजीर आला बना दें। हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने इलेक्शन कमीशन का फैसला आने से कबल ही अदलिया का दरवाजा खटखटाने का अंदिया दे दिया। कैमरामैन फयाज उमर और साथी रिपोर्टर आसिम नसीर के साथ अब्बास नकवी, समा, लाहौर। एक और अहम खबर आपको दें। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में वजीर आजम के बेटे सुलेमान शहबाज को क्लीन चिट दे दी है। FIA ने अदालत में बयान दिया कि मुल्ज़मान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और किकबैक्स के शवाहिद नहीं मिले। सुलेमान शहबाज ने स्पेशल सेंट्रल कोर्ट से अबूरी जमानत की दरख्वास्त वापस ले ली। लाहौर से अरशद अली रिपोर्ट कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज की मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में पेशी दौरान समाअत FIA ने सुलेमान शहबाज और ताहिर नकवी की हद तक चालान जमा कराया, जिसमें कहा गया कि मुल्ज़मान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और किकबैक्स के शवाहिद नहीं मिले। सुलेमान शहबाज और ताहिर नकवी ने अबूरी जमानतों की दरखास्तें वापस ले ली। FIA ने शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा नवंबर 2020 में दर्ज किया था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को 12 अक्टूबर 2022 को बरी कर चुकी है, जबकि सलमान शहबाज को अदालत में पेश न होने पर 15 जुलाई 2022 को इश्तिहारी करार दिया था, जिस पर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फांसी जमानत करवाई और शामिल तफ्तीश हुए। FIA स्पेशल कोर्ट ने सलमान शहबाज को ट्रायल के लिए 4 फरवरी को तलब कर लिया। कैमरामैन खबर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। अब आपको बताएं कि नैब तरमीमी कानून के मुताबिक मुकदमात सिर्फ एहतसाब अदालतों से दीगर मजाज अदालतों को मुंतकिल हो सकते हैं, नैब को वापस नहीं हो सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ गया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने फैसले में ये भी वाज़ेह कर दिया कि रेफरेंस वापस होने का मतलब बरियत नहीं है। और कौन कौन से नकात की तशरीह की गई है, जानते हैं सुहेल रशीद की रिपोर्ट में। तरमीमी एक्ट के बाद एहतसाब अदालतों से नैब को वापस होने वाले 300 मुकदमात की कानूनी हैसियत पर सवाल उठ गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कह दिया कि रेफरेंस तो सिर्फ किसी दूसरी मजाज अदालत को मुंतकिल ही हो सकते हैं, नैब को वापस भेजे जाने का तो कोई तस्वर नहीं। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में करार दिया कि नैब ये बताने में एहतसाब अदालतों की हर मुमकिन मुआवनत करे कि अब दायरा इख्तियार से खारिज मुकदमात कौन सी अदालतों में जाने हैं। ये भी वाज़ेह कर दिया कि किसी मुल्ज़िम के खिलाफ रेफरेंस नैब को वापस हो जाने का हरगिज ये मतलब नहीं कि वो बरी हो गया है। नए हकायक सामने आने पर नैब ज़िमनी रेफरेंस दायर करने के लिए अब भी आज़ाद है, बस एहतसाब अदालत की इजाज़त लेना होगी। सरमायाकारी के नाम पर अवाम से फ्रॉड के मुल्ज़िम आदम अमीन चौधरी के अकाउंट्स डीफ्रीज करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। तफसीली फैसले में करार दिया गया है कि जो अहकामात एहतसाब अदालतों ने तरमीमी एक्ट से पहले जारी कर रखे हैं, उन्हें अब कोई दूसरी मुतल्लका अदालत ही तब्दील कर सकती है और कोई नहीं। और आपको बताएं, इमरान खान हमला केस की JIT के खिलाफ महकमा दाखिला पंजाब के रूबरू एतराज़ात दायर। मुल्ज़िम नवीद ने JIT की सियासी बदनीयती बेनकाब होने पर अपने वकील की वसातत से एतराज़ात दायर किए। मज़ीद जानेंगे इस हवाले से जहांगीर खान से। जहांगीर, आगा कीजिए। जी, मुल्ज़िम नवीद जो है, इसने अपने वकील की वसातत से महकमा दाखिला पंजाब को ये एतराज़ात पर मबनी दरख्वास्त दायर की है, जिसमें ये एतराज़ात उठाए गए हैं कि JIT के अरकान ने एक दूसरे पर सियासी बदनीयती के इल्ज़ामात लगाए हैं और जो JIT के कन्वीनियर हैं उन्होंने भी होम डिपार्टमेंट को अपने जो बाकी के 4 अरकान हैं उनके बारे में एतराज़ात तहरीरी तौर पर भिजवाए थे। और JIT की जो सरबराह है और सिविल अफसर की तरफ से सफा मिसल से अहम दुआओं के बयान ज़ाहिर करने की जो शवाहिद हैं वो मुल्ज़िम नवीद के वकील की जानिब से होम डिपार्टमेंट को भिजवाया गया है। और दरख्वास्त में इब्तिदा की गई है कि JIT की जो मौजूदा मेंबरान है केस की फाइल और सबूत उसे फौरी तौर पर कब्जे में लेकर किसी भी गैर सियासी पुलिस ऑफिसर को ये तफ्सील जो है वो सौंप दी जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसील के लिए जहांगीर। बुलेटिन में आगे देखिए, दांत बजाती सर्दी में सयाहों की मौज मस्ती।
आगे बढ़ेंगे। सुलेमान शहबाज ने फाइनेंस मिनिस्टर को जोकर कहने से मुताल्लिक अपने ट्वीट की वजाहत कर दी है। कहा किसी का नाम नहीं लिया, पीटीआई के आखिरी 3 वज़रा के लिए लिखा था। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। वो तो पीटीआई के जो आखिरी 3 थे उनको कहा था, पीटीआई के 5 उन्होंने चेंज किया था, मैंने तो 3 की बात की, का नाम नहीं था, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। कराची में सियासी मुखालफीन ने एक दूसरे को गले लगा लिया। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख मकामी अदालत में सूबाई वजीर सईद गनी से गले मिले। कराची की मकामी अदालत में सईद गनी की जानिब से हलीम आदिल शेख के खिलाफ हत्के इज्जत केस की समाअत हुई। अदालत ने सईद गनी से मुकालमा किया कि आपने हलीम आदिल शेख के खिलाफ हत्के इज्जत का केस किया है, क्या पैसे इज्जत से बढ़कर हो सकते हैं? अदालत ने सईद गनी और हलीम आदिल शेख को हिदायत की कि दिल बड़ा करें और एक दूसरे को माफ़ कर दें, जिसके बाद हलीम आदिल और सईद गनी गले मिले। झगड़ा थोड़ी है, हम ये बिल्कुल नहीं बताना चाहते कि हमारा कोई ज़ाती इख्तिलाफ है। हम कौम के लिए, अवाम के लिए, सिंध के मफाद की बात करते हैं, जो करते रहेंगे। ज़ाती ना झगड़ा था ना झगड़ा है। मेरा तो सीधा ये है कि जो एलिगेशन मुझ पर लगाए गए हैं, मैं यकीन से कहता हूँ वो झूठे हैं। एलिगेशन वापस लेना है, उस केस से खत्म हो जाए। पहली पेशी पे ये नहीं थे जो जज साहब ने कहा सेटलमेंट करो, मैं क्यों नहीं था कि जी बिल्कुल सेटलमेंट होना चाहिए। ज़ाहिर में जाती दुश्मनी नहीं है। सर्द मौसम की बात करें तो बालाई इलाकों में सर्दी की शदीद लहर बरकरार है। वादी नीलम, शुगरान और कागान में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। राबता सड़कों को खोलने का काम किया जा रहा है। दीर, लवारी टॉप और कुमराज में बर्फबारी देखने के लिए सयाह पहुंच गए। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी जारी है। वादी नीलम में बर्फबारी के बाइस रास्ते बंद हो गए। पहाड़ी इलाकों में लोगों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया मशीनरी के जरिए रास्तों को क्लियर करने में मसरूफ है। सियाहती मुकाम शुगरान और कागान में बारिश के साथ बर्फबारी हुई। शुगरान में 3 इंच और कागान में 5 इंच से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है। इंतजामिया ने शुगरान रोड से बर्फ हटाकर उसे ट्रैफिक के लिए खोल दिया है। दीर, लवारी टॉप और कुमराट में हल्की बर्फबारी हुई। सयाहों की बड़ी तादाद हसीन वादियों के नज़ारों से लुत्फानंदोज हो रही है। चमन समेत शमाली बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके बर्फबारी से ढक गए हैं। कोज़क टॉप के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है और शहरी बर्फबारी को एंजॉय करने के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। इस वक्त कोज़क टॉप के पहाड़ों पर नुमाइंदा समा सईद अचकजई मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सईद, अपडेट कीजिए मौसम के हवाले से। जी बिल्कुल, काफ़ी अरसे के बाद चमन समेत शुमाली बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बर्फबारी हुई है। इस वक्त में कोज़क टॉप के पहाड़ मौजूद जहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ शदीद बर्फबारी हुई थी। बर्फबारी को एंजॉय करने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने चमन कोज़क टॉप के पहाड़ों का रुख कर लिया है। एक दूसरे को बर्फ़ के गोले मार रहे हैं, काफ़ी खूब इंजॉय कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि काफ़ी अरसे के बाद इतनी शदीद बर्फबारी हुई, उसको इंजॉय करने के लिए वो यहाँ पे पहुँच चुके। बहुत अच्छा सा इंजॉय करे। ये कोज़क टॉप में जो है हमें इधर खड़ा है, बर्फबारी ज़्यादा हुआ है ना, बहुत खूबसूरत मौसम है। अपना दोस्तों के साथ आया हुआ है। सयाह जो है वो पहुँच चुके हैं यहाँ पर। इनका ये कहना है कि काफ़ी अरसे के बाद ये मनाजिर उनको देखने को मिले हैं। जी सईद अचकजई, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। डिफेंस के निजी स्कूल में तालिबा पर साथी लड़कियों का तशद्दुद, मुकदमे में मुलव्वस तालिबात ने गिरफ्तारी के खौफ से अबूरी जमानत दायर कर दी है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे अरशद अली ने हमें ज्वाइन किया। अरशद, क्या डिटेल है इस खबर की? जी बिल्कुल, जो है वो इब्तदाई तौर पर 3 तलबात की जानिब से ये अबूरी दरख्वास्त जमानत सेशन कोर्ट लाहौर में दायर की गई है। तीनों में जो है वो जन्नत मलिक और कायनात मलिक और आयमा कैसर जो है वो शामिल है। और दरख्वास्त गुजारों जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ तैयार किया गया है कि पुलिस ने बदनीति की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज किया है और शामिल तफ्तीश होकर पुलिस को हकायक से आगाह करना चाहते हैं। हमारा इस मुकदमे में कोई कसूर नहीं है। तमाम तालिबात की जानिब से अदालत से इस्तदा की गई कि अदालत अबूरी दरख्वास्त जमानत जो है वो मंजूर करे। अदालत कुछ ही देर बाद तीनों तालिबात की दरख्वास्त जमानत पर समाअत करेगी। ठीक है अरशद, बेहद शुक्रिया डिटेल्स के लिए। अब आपको बताएं कि बढ़ती महंगाई के बायस जहां सब्जियां भी गरीबों की पहुंच से दूर होती जा रही हैं, वहीं कमिश्नर कराची की अदम तवज्जो के बायस सरकारी प्राइस लिस्ट सिर्फ एक कागज की हैसियत इख्तियार कर चुकी है। बिल्कुल, प्राइस लिस्ट पर अमल दरामद कराने वालों को अपने दफ्तर से बाहर निकलने की फुर्सत नहीं है। रेहान अहमद रिपोर्ट कर रहे हैं।
गोश्त, सब्जियां और फल आम आदमी की खुराक के लिए लाजमी हैं, मगर अब महंगाई की वजह से अशियाए खुर्दोनोश पहुंच से दूर होती जा रही हैं, क्योंकि सरकारी रेट लिस्ट में कीमतें कुछ और होती हैं और सारिफ को फरोख्त किसी और दाम पर की जाती हैं। मार्केटों में रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया किस कीमत पर फरोख्त की जा रही हैं, दुकानदारों की ज़बानी सुन लें। खीरा 80 रुपए किलो चल रहे, लहसुन जो है ना 350 रुपए किलो है, अदरक भी 350 रुपए किलो है। इस तरह गोल लुकी है 40 से लेकर 50 रुपए किलो, और गाजर जो है ना 60 रुपए किलो है, मटर 100 रुपए किलो है। अनार का है 350 रुपए किलो, किन्नू में 250 रुपए दर्जन, मौसम्बी 250 रुपए दर्जन, बेर 200 रुपए किलो, सेब 300 रुपए किलो, अमरूद 100 रुपए किलो। एक तरफ अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ रही हैं तो दूसरी तरफ आम आदमी पेट भरने के लिए फिक्रमंद नजर आता है। प्राइस चेक नहीं है बिल्कुल भी, कभी कोई कीमत होती है कभी कुछ कीमत है। एक आदमी जिसके इनकम 40,000 या 50,000 है, उससे बड़ा दुश्वार हो जाता है गुजारा करना। दुकानदारों ने तो महंगाई का सारा मलबा इंतजामिया पर डाल दिया। ये कंट्रोल लिस्ट वाले जो है ना, वो लिस्ट वाले जो है ना, वो भी सही काम नहीं कर रहे, न मंडी से सही मालूमात ले रहे। प्राइस कंट्रोल लिस्ट नहीं आती, अगर वो आ भी गई ना हमारा फ़ायदा नहीं, उसमें नुकसान है, क्योंकि उसमें होता है रेट कम। ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत दुकानदार हजरात के साथ मिलकर एक वाज़ेह लाहे अमल मुतय्यन करे। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। कराची से ही खबर शामिल करेंगे। फलों और सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई है। दुकानदारों ने सरकारी प्राइस लिस्टों को रद्दी में डाल दिया है। शहर में मनमानी कीमतों पर फल और सब्जियों की फरोख्त जारी है। मजीद बात करेंगे हामिदुल रहमान, जो इस वक्त लाइंस एरिया की शहाबुद्दीन मार्केट में मौजूद हैं। हामिद, बताइएगा क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप यहाँ पर? सदर की जो मेन बाजार है यहाँ पर मौजूद है। हमने यहाँ जो दुकानदार हैं, आम दुकानदार जो, उनसे हमने बात की, उनसे जो रेट ले उसके मुताबिक जो आलू जो है वो 33 रुपये कमिश्नर की लिस्ट के मुताबिक है, वो यहाँ पर 40 से 50 रुपये। आप इसी तरह जो बैंगन है वो 50 रुपये किलो बेचा जा रहा है, और इसी तरह किनू जो है वो आला दर्जे का 203 रुपये होना चाहिए, वो 350 रुपये मिलेगा, और बराबर वाली दुकान पर वही किनू जो है वो आला दर्जे का आपको 300 रुपये भी मिलेगा। इसी तरह अनार जो 233 रुपये फ़ी किलो कमिश्नर की लिस्ट के मुताबिक होना चाहिए, वो यहाँ पर आपको 400 रुपये और 350 रुपये किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है। कमिश्नर कराची की लिस्ट के मुताबिक और वज़ीर सिंध को जो आदाद शुमार बताए जा रहे हैं उनके मुताबिक तो सब्जियाँ बहुत सस्ती हैं, फल बहुत सस्ते हैं। लेकिन एक आम आदमी से पूछा जो इन सब्जियों को ख़रीदने के लिए और फलों को ख़रीदने के लिए इन मार्केटों में आता है, उनको 50 रुपये और 100 रुपये फ़र्क के साथ ये सब्जियाँ बेची जा रही है और फल बेचे जा रहे हैं। ठीक है हामिद, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद में रेलवे का बीमार मुलाजिम तनख्वाह का इंतजार करते करते दुनिया से ही रुखसत हो गया। अहले खाना ने कफन दफन के पैसे ना मिलने का शिकवा कर दिया। रिजा सिंधु की रिपोर्ट। दवाई के लिए तनख्वाह आने का इंतजार तो खत्म ना हुआ, मगर जिंदगी खत्म हो गई। फैसलाबाद के इलाके मुजफ्फर कॉलोनी के रिहायशी रेलवे मुलाजिम एहसान अली की दिसंबर की तनख्वाह ताहाल जारी ना हुई। बेटे के मुताबिक शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज वालिद पैसे ना होने पर दवाई ना खरीद सके, जिससे हालत बिगड़ी और जान चली गई। रिटायरमेंट के लिए अप्लाई किया है, मगर रिटायरमेंट भी नहीं दी। इस बीमारी में वो कह रहे थे छुट्टी दे दे रेस्ट के लिए, वो भी नहीं दी। रेलवे स्टेशन इंतजामिया के मुताबिक सैलाब के बाइस तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहें देर से जारी हो रही हैं। ऑन ड्यूटीज़ की डेथ हुई है, और जितने भी उसके आगे राइट्स होंगे वो हम उसे देंगे, उसमें उनके एक फैमिली मेम्बर को जॉब भी ऑफ़र करेंगे। अहले खाना ने शिकवा किया कि हर माह कफन दफन के नाम पर तनख्वाह से होने वाली कटौती के पैसे भी ना जारी किए गए, जबकि रिटायरमेंट के लिए दी जाने वाली दरख्वास्त भी 6 माह से मंजूर ना की गई। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ रिदा सिंधु, समा, फैसलाबाद। अदालती मामलात की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सरकारी इदारों में खुसूसी अफराद के लिए मुख्तस कोटे पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया है। फैसले में करार दिया कि खुसूसी अफराद को मुलाजमत देना सदका खैरात नहीं बल्कि आइनी हक है। मुआशरे की तरक्की में खुसूसी अफराद का भी उतना ही किरदार है जितना आम आदमी का है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा खुसूसी जुल्करनैन इकबाल ने हमें ज्वाइन किया। जुल्करनैन, बताएगा अदालती फैसले से मुताल्लिक। देखिए, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक पर मुश्तमिल ये तहरीरी फैसला है जो उन्होंने जारी किया है, जो नैब के एक मुलाजिम की जानिब से था। नैब को इस फैसले में अदालत ने हिदायत की है कि जो
खसूसी अफराद के लिए मुख्तस कोटा है उसके ऊपर जो अमल दरामद है उसको यकीनी बनाया गया। साथ ही साथ तमाम सरकारी इदारों को भी हिदायत जारी कर दी गई है कि जो खसूसी अफराद के लिए कोटा मुख्तस किया गया है उसके ऊपर तकर्रियों को खसूसी अफराद के लिए ही यकीनी बनाया जाए। अदालत का अपने फैसले में ये भी कहना है कि पाकिस्तान में जो खसूसी अफराद है उनकी तादाद 35 लाख से लेकर 2 करोड़ तक है, जिसको किसी भी सूरत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और खसूसी अफराद को सरकारी इदारों में मुलाजमत देना को सदका या खैरात नहीं बल्कि उनका आईनी हक है। अदालत ने तमाम जो सरकारी इदारे हैं। बेहद शुक्रिया डिटेल्स के लिए।